Hello, good morning all. Am I audible? Hello. Yes, Aniket, Harsh, Snehal. Am I audible to you? If I am audible clearly, please drop a message in the chat box. Okay, okay, Harsh, fine. So, good morning. So, today we had joined here in this lecture under Prerna scheme, and today I am going to cover the topic related to the applications of thermal engineering in your GATE syllabus of 2021. Today's part is covered under a topic known as the application of thermal engineering. Today, where I am going to cover up air compressors and then the Breton cycle. So, Breton cycles come under the title of gas turbine in your regular syllabus of our RTMNU and under the air standard cycle of engineering thermodynamics that you all had gone through in your fourth semester. So, in today's lecture, we will try to cover up all the theory related to these two topics, and in further coming lectures I would take the numericals related to this which had come in your previous year GATE examination and provide you the question set that can come in your GATE 2021. So students are still joining. We will wait for 3 minutes again and begin at 10:40. Till then, I am sharing my presentation screen now. Please tell me, is it visible to you all? Hello, sir. Hello. Hello? Hello. Yes? Yes, Sir, Harsh? for thermal engineering, we have to first study thermodynamics, sir. Yes, you have to go through thermodynamics. Then this comes under the application of thermodynamics. This is applied part of your engineering thermodynamics. You should have knowledge of your processes in thermodynamics. Then what is an adiabatic process? What is an isothermal process? This you have to study first, and then only then you can understand deeply these topics, which comes under the application of engineering thermodynamics or applied thermodynamics. So it is not that you would understand nothing if you don't know engineering thermodynamics only. If you are still to prepare that, it would be okay for today's lecture. I will try to cover up some basics related to the air compressors and the Breton cycle. So is my presentation screen visible to you all? Okay, Harsh. I would like to have input from you all, those who had joined today for this lecture. So be interactive. If you have any doubt, any question, please do raise the symbol of that is provided in the Google Meet now, raise hand, so that I can stop and you can ask me question audibly rather Sir, than typing in sir, the chat. actually, I am a student of second year, sir.
Harsh, this actually I had come to know that this course has been allotted to third year and final year students. वो एक्चुअली वो ग्रुप में आ गया था तो फिर सर ज्वाइन इसलिए हुआ मैं इसलिए सर आपको पूछा कि मतलब ये समझ पाएगा क्या सर। Just give me a second, huh, Harsh? I will come back on it to you. यस। Hello. Harsh, you can wait in this lecture. यस सर। If you do understand it, you can stay. Otherwise, you can leave the meeting then. If you ओके don't सर। get something. Okay, fine. Okay then. Good morning all. So today I would be presenting you or teaching you the theory related to air compressors and Breton cycle with perspective of gate. So today's lecture will be an theoretical part to both of these topics, which comes in applied thermodynamics or the applications of thermodynamics. So I would like to ask some questions to you all, that what is thermodynamics? Can anybody define me? You can unmute yourself and answer this question in audio mode. How can you define thermodynamics? Yes, anybody? Aniket, Harshal, Lucky, Nayan, Rohit, Vibhor. Sir, thermodynamics is which studies about energies and how the energies takes place in different ways. How energies takes place? What does that mean, Harsh? मतलब सर वो एनर्जी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मींस प्रोसेसेस रहती है बहुत सारे टाइप्स की। No, fine, okay. I would expect this question to be handled by someone from third year or the final year. Can anybody define what is actually thermodynamics so that we can proceed further? And I can link what is thermodynamics and applications of thermodynamics together in order to make you understand the technicalities behind air compressors and gas turbine. So please define what is thermodynamics first.
Yes, Vibhor Dongre, can you define what is thermodynamics? Correlation of various energies and heat with each other. Okay, partially correct, Vibhor. So what we can say about thermodynamics, it is the science of interaction of energies between system and surrounding, in which system and surrounding is defined by our perspective or our angle of seeing. The way you define a system depends wholly on an observer, that would be you. So interaction of energies between the system and surrounding is termed as thermodynamics. Is thermodynamics. Now if I am saying about the system and surrounding in today's our lecture, our systems would be air compressors and Breton cycles, and surrounding would be our environment. So how the interaction of energies occur in air compressors and Breton cycles and between the environment, that is what we have to study and interlink today. So the energy interactions of air compressors and Breton cycles would be what you get today. How do the energies interact in these systems and the surrounding environment? So what is an air compressor? Can anybody tell? What is an air compressor? आप लोगों ने कहाँ देखा है air compressors? Final year students are studying air compressors in their energy conversion too in this 7th semester. तो कहाँ कहाँ पे आपको एयर कंप्रेसर देखने को मिलते हैं, आप बता पाओगे? सर साइकिल की दुकान में। ओके, हर्ष, फाइन, गुड आंसर. अगेन, और कहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को? You would able to see air compressors practically at the service centers of your automobiles also. Compressed air is utilized there in order to clean the parts and also to operate some of the tools. Pneumatic gun, good, Vibhor, fine. So these are all the applications of our air compressors. So these are very useful machines in our day-to-day life. In our day-to-day. So what is an air compressor? Air compressor is a device which is used to increase the pressure of air from low pressure to high pressure by using some external energies. By using some external energies. So if I consider my reciprocating compressor, so mainly there are two types of compressors. Firstly, there are the reciprocating compressors and then there are the rotary compressors. Both types of compressors and theory related to that we have to see today. So firstly, we are going to talk about the reciprocating compressors. The compressors which take an energy input and compresses air from low pressure to high pressure using an piston stroke arrangement is known as reciprocating compressor, जिसमें आपकी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहेगी और वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से हम लोग क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे. वैसे कंप्रेसर्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स. ऑल यू नो, एवरी वन ऑफ यू नो द रेसिप्रोकेटरी मोशन. So this image here shows you the three cylinder compressors, first cylinder, second cylinder and third cylinder. तो यहाँ पे जो आपको या ये जो डायग्राम बता रही है या फिर इमेज दिखा रही है, दिस इज द थ्री स्टेज compressor, air compressor, and this blue tank is known as the reservoir tank. This blue tank is known as the reservoir tank. So this as a whole
is our thermodynamic system. This whole arrangement here is our thermodynamic system. Now, the energy interaction with this system from the outer environment is what we have to understand. Is what we have to understand. Here, some points related to the application of compressor are given. तो पहला हम देखते हैं तो फॉर फिलिंग द एयर्स इन ट्यूब्स ऑफ व्हीकल, जो कि अभी हर्ष ने बताया था थोड़ी देर पहले, साइकिल की दुकान में दिखते हैं. देन इन ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन टू क्लीन द व्हीकल्स. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर स्प्रे पेंटिंग इन पेंटिंग इंडस्ट्री. अगर आप लोग देखोगे कि आपका अगर ऑटोमोबाइल का डोर पेंट करवाना होगा तो वहां पे छोटा कंप्रेसर लगा रहता है और फिर पेंट गन रहती है. वो अरेंजमेंट भी कैसे चलती है? बिकॉज ऑफ कंप्रेस्ड एयर. So compression of air and its utilization is one of the biggest application of thermodynamics. आप लोगों को पता है कि कोई कोई ब्रेक्स भी न्यूमेटिकली ऑपरेटेड रहते हैं. तो वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड ब्रेक्स यानी कि क्या है? दोज आर द एयर ब्रेक्स जहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं. सो हाउ फिजिबली we can compress air and utilize it for our applications is a big problem in front of any mechanical engineer. So what is an reciprocatory compressor or compressor? A device which takes a definite quantity of fluid thermodynamically. A device which takes a definite quantity of fluid, जिसमें यूजुअली क्या रहते हैं? गैस एंड मोस्ट ऑफन एयर. अब यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें दिख रही है, गैस एंड मोस्ट ऑफन एयर. यहाँ गैस क्यों लिखा गया है ये समझ लीजिए आप. If I take an example of a compressor of a VCRS system, the vapor compression refrigeration system, final year student will know, or the simple domestic refrigerator if we consider, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के सबसे नीचे वाले पार्ट में ब्लैक कलर का जो भी कंप्रेसर या फिर डिवाइस लगाया जाता है, दैट कंप्रेसर इज द गैस कंप्रेसर. तो वर्किंग फ्लूइड or the fluid which is used in a compressor can be a gas or it can be air and deliver it at a required pressure. तो एक प्रेशर पे हमें क्या मिलेगा? गैस या फिर एयर मिलेगा. एयर कंप्रेसर्स में स्पेसिफिकली क्या होता है? एयर कंप्रेसर में स्पेसिफिकली क्या होता है? तो एयर कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर लेता है. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिस डिवाइस इज एन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. दिस डिवाइस इज एन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ये सिस्टम के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ? एटमॉस्फेरिक एयर को सक करूंगा. तो कुछ ना कुछ एनर्जी इंटरेक्शन होगी वहां पे, कुछ ना कुछ एनर्जी इंटरेक्शन होगी. वो एनर्जी इंटरेक्शन हमें समझनी है. तो क्या हो रहा है कि वी विल टेक एन एयर एंड compress it and deliver it to the storage tank or the reservoir. तो ये वाला हमारा डिवाइस क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगा फ्रॉम द लो प्रेशर स्टेज ऑफ द कंप्रेसर टू द हाई प्रेशर स्टेज तक कंप्रेस करेगा. उसके बाद ये वाले ब्लू कलर के रिजर्वायर टैंक में जाके हम क्या करेंगे? हमारे कंप्रेस्ड एयर को सेव कर देंगे या फिर कंप्रेस्ड एयर को रख देंगे. और जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है उस पर हम लोग क्या करेंगे? उसे यूटिलाइज करेंगे. नाउ द प्रोसेस ऑफ compression, the process of compression is an work consuming process. So what we had seen that compressor is an thermodynamic system and we have to understand the energy interaction with it. So compressor का काम क्या है? वो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है, उसे कंप्रेस करता है और रिक्वायर्ड प्रेशर पे उसको क्या करेगा? डिलीवर करेगा. और रिक्वायर्ड प्रेशर पे क्या करेगा? उसे डिलीवर करेगा. सो वो कंप्रेशन करने के लिए हमें क्या लगने वाला है? वर्क लगने वाला है. एंड वर्क इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी. इज वर्क इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनेमिक के लिए कितनी टाइप्स ऑफ एनर्जी है? कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी?
How many types of energy are there thermodynamically? If I say in sense of thermodynamics, तो कितने types of मेरे पास energies है? Can anybody please tell me? Yes, चौरे, बागड़े, साकरे, वासनिक, चंद्रिकापुरे, सर हीट। अल्ट्रालेट. सेवन सर। Yes, हर्ष. सर हीट। कितने टाइप्स की एनर्जी है थर्मोडायनेमिकली जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं? सेवन सर। 7. Who had answered this? अथंग. ओके. ओके सर अथंग. बागड़े। हाँ हाँ. यस अथंग. हाउ 7 टाइप्स? मैंने पूछा आपको कि थर्मोडायनेमिकली कितने पोटेंशियल टाइप्स की एनर्जी। एनर्जी रहती है? सर थर्मोडायनेमिकली तो नहीं पता, लेकिन एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी पता है। यू आर फ्रॉम विच ईयर अथंग? सेकंड, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर? सर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। ओके ओके, थर्ड ईयर अथंग. सो बेटा अथंग, thermodynamically you know only two types of energy interactions, and those two types of energy interaction are the work transfer and the heat transfer. So you should all know that कोई भी thermodynamic system रहेगी, कोई भी forms of energy रहे, there are only two forms of energy that you know. A mechanical engineer observing any energy device should understand that there is only two types of energy interaction possible between system and surrounding, and those two types of energy interactions are work transfer and heat transfer. The energy interaction which solely takes place because of the temperature difference is heat transfer. यानी कि जो एनर्जी इंटरेक्शन सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है वो है हमारा हीट ट्रांसफर. और अदर देन दिस अगर कोई भी तरीके का एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट वुड बी दी वर्क ट्रांसफर. वो वर्क ट्रांसफर के डोमेन में चले जाएगा. ये चीजें आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर करनी पड़ेगी बेटा. सो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस पॉसिबल. क्योंकि आप लोग अगर कोई भी गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का या फिर थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि देयर विल बी ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. एक टाइप रहेगा हीट ट्रांसफर, दूसरा टाइप रहेगा वर्क ट्रांसफर. सो जो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आएगा, दैट वुड बी द हीट ट्रांसफर एनर्जी इंटरेक्शन. एंड अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो चीजें होगी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट वुड बी द वर्क ट्रांसफर. दैट वुड बी दी वर्क ट्रांसफर. तो कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते समय, पेपर पढ़ते समय, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या फिर स्टीम टरबाइन से रिलेटेड या फिर गैस टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखोगे, वीसीआर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखोगे, तो ये चीज अपने माइंड में क्लियर रख लेना कि देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन. सेम वे इन अवर दिस कॉम्प्रेसर, ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर आपको दिख रहा है, ये कंप्रेसर में सिर्फ दो टाइप का एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल है. सिर्फ दो टाइप का एनर्जी इंटरेक्शन पॉसिबल है. एक टाइप है हीट ट्रांसफर, दूसरा है वर्क ट्रांसफर. और मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग कंप्रेसर के अंदर क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस करवा रहे हैं. वी आर कंप्रेसिंग एयर. तो वो एयर को कंप्रेस करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, सिस्टम को वर्क देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है? वर्क देना पड़ता है. Therefore, air compressor is an work consuming device. So your air compressor is an work consuming device. Is it clear? किसी को ये चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो बेटा.
Okay, fine. Then I think there is no question. So our air compressor is an work consuming device. We have to supply work in order to compress air. तो वो जो वर्क मुझे सप्लाई करना है मेरे कंप्रेसर को, वो वर्क मैं विद दी हेल्प ऑफ क्या दे सकता हूँ, तो वो समझ लेते हैं हम लोग पहले। वो क्या रह सकता है? वो वर्क मुझे जो मेरे कंप्रेसर के शाफ्ट को सप्लाई करना है, वो वर्क एक तो एक हो सकता है कि मेरे इलेक्ट्रिक मोटर से जाए। कैसे जाए? इलेक्ट्रिक मोटर से जाए, या फिर वो हो सकता है कि कोई अलग डीजल इंजन से जाए। क्या हो सकता है? एक तो एक मैं उसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर सकता हूँ, या फिर डीजल इंजन यूज कर सकता हूँ। ये दो तीन चीजों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। एक हो जाए इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरी हो जाती है न्यूमेटिक मोटर, तीसरा हो जाता है मेरा डीजल इंजन। इन किसी भी एप्लीकेशंस में से मैं उठाऊंगा और मेरे कंप्रेसर को मैं क्या करूंगा? वर्क सप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मैं वर्क सप्लाई करूंगा। एंड please understand that reciprocating compressor or any type of compressor is an work consuming device, is an work consuming device. So now we will going to see the layout of the reciprocating air compressor. We will see the layout of the reciprocating air compressor. So consider this as an cut section of your reciprocating compressor. Cut section of your reciprocating compressor. इफ आई टेक द सिंगल स्टेज, वो सिंगल स्टेज को मैं लेके आके अगर कट करता हूँ, सो दिस वुड बी द लेआउट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो आपको एम रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज योर व्हाट? इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर में से मैं क्या करूंगा? मेरी जो क्रैंक शाफ्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, मेरी जो क्रैंक शाफ्ट है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, उसको मैं क्या करूंगा? पावर सप्लाई दूंगा या फिर वर्क सप्लाई दूंगा। ये मोटर मेरा एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कर रही है। दिस कंप्रेसर इज माय सिस्टम, दिस कंप्रेसर इज माय सिस्टम, दिस मोटर इज सप्लाइंग वर्क टू द शाफ्ट ऑफ माय कंप्रेसर, शाफ्ट ऑफ माय कंप्रेसर। उसकी वजह से मेरी क्रैंक क्या होगी? रोटेट होगी। ये जो डॉटेड सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन योर क्रैंक, end point of your crankshaft, or the connecting pin, or the connecting pin between the crank and the connecting rod. This locus defines this, sorry, this dotted circle define the locus of the connecting pin of connecting rod and the crank, and the crank. So ये वाले डायरेक्शन में मेरा क्या होगा? क्रैंक रोटेट होगा, जिसकी वजह से मेरा पिस्टन का रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पिस्टन का रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। सो जब मेरा पिस्टन समझ लो सबसे ऊपर पॉइंट में है, जब मेरा पिस्टन सबसे ऊपर वाले पॉइंट में है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इट इज नोन एज टॉप डेड सेंटर। इट इज नोन एज टॉप डेड सेंटर, टीडीसी शॉर्ट फॉर्म में उसे टीडीसी बोला जाता है। नाउ समटाइम्स इन गेट क्वेश्चंस यू विल फाइंड एन theory question for 1 mark. A theory question for 1 mark may come for this TDC or the final position of your piston, which is known as bottom dead center, which is known as bottom dead center, BDC. अब ये TDC और BDC क्यों कहा जाता है? Why these 2 points are known as top dead center and bottom dead center? So when my piston reaches the TDC or the top dead center, my crank will rotate continuously for particular angle. समझ लो मेरा क्रैंक कोई तो भी 10-12 डिग्री के एंगल के लिए रोटेट होगा, लेकिन वो वाले टाइम में जब मेरा पिस्टन टीडीसी पे है, देयर विल बी जीरो मूवमेंट ऑफ माय पिस्टन। ये क्रैंक तो घूमेगा कुछ तो भी 10-12 डिग्री एंगल के लिए, लेकिन मेरे पिस्टन का मूवमेंट नहीं रहेगा, मेरे पिस्टन का मूवमेंट नहीं रहेगा। So at that particular instant of time, my piston will be considered as the dead piston. Therefore, it is known as the top dead center.
as it is at the top point of your cylinder and it does not have any movement, this point is known as top dead center, and your piston for that particular crank angle, is known as dead piston. Therefore that point is known as TDC. Therefore that point is known as TDC. Same way, at the bottom or the lowest point, at the lowest point of your reciprocatory movement, the piston will be steady, but your crank will move for particular 6 to 7 degrees angle, and that point is known at bottom dead center, as at that point also your piston will be the dead piston, the dead piston. Then we have to see how, what are the various. Sir, can I ask one question? Yes, yes. Sir, just, ये इस just a second, huh? yes. Let me see who you are so that I can take. Okay, Harsh, it is Harsh. Okay, fine. सर ये जो पिस्टन है वो तो 3 सिलेंडर्स को कनेक्टेड रहेगा ना सर? No, no, not. उसका पिस्टन Just a second, Harsha. I have some disturbance. Okay. हाँ थोड्या वेळात येतो मी सांगतो. हाँ, yes Harsh. Please can सर you ये जो repeat the question? ये सही जो पिस्टन है हाँ वो जो 3 सिलेंडर लगे तो सर उधर अलग पिस्टन रहेगा क्या सर, जो 3 सिलेंडर उसमें अटैच्ड है वो एयर कंप्रेसर में? हाँ बेटा, हर एक सिलेंडर का पिस्टन अलग रहता है. सिर्फ जो सिर्फ वो ये जो क्रैंक क्रैंकशाफ्ट तो सर कॉमन रहेगा ना सर उसका? क्रैंक शाफ्ट कॉमन रहेगा, लेकिन पिस्टन अलग रहेगी. अच्छा अच्छा. दिस, ये जो आपको सेंटर में क्रैंक शाफ्ट दिख रहा है, दिस क्रैंक शाफ्ट, ये जो बीच वाले 2 सर्कल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, हाँ. दिस वुड बी द कॉमन शाफ्ट. ये कॉमन शाफ्ट रहेगी, लेकिन पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट तीनों की अलग रहेगी. सो मूविंग फर्दर, we have to see the different parts of your air compressor. This is an suction line. दिस इज द सक्शन लाइन, जहाँ पे आपको एयर सक्शन दिखाई दे रहा है. यहाँ से आपकी एटमोस्फेरिक एयर आएगी, यहाँ से आपकी एटमोस्फेरिक एयर आएगी. देन दिस इज द सक्शन वॉल, इसे कहा जाता है सक्शन वॉल. दिस सक्शन वॉल, you have to interlink thing of your mechanical engineering. This suction wall is operated by the pressure difference. This suction wall is operated by pressure difference. अब जैसे जिस तरीके का प्रेशर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये ऑपरेट करेगा. मैं अभी आपको आगे उसका फंक्शनिंग समझाऊंगा कैसे, और विजुअल्स भी दिख जाएंगे आपको, वो समझ जाएगा. दिस इज सेम विद द डिलीवरी वॉल. तो यहाँ से एयर अंदर आएगी, ये वाले पोर्शन में वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, और यहाँ से आपका डिलीवरी जाएगी. दिस इज द डिलीवरी वॉल एंड दिस इज द डिलीवरी लाइन. दिस इज द पिस्टन. ये जो आपको पिस्टन के ऊपर की एक लाइन दिख रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द पिस्टन रिंग. दिस लाइन रिप्रेजेंट द पिस्टन रिंग. इसको पिस्टन रिंग कहा जाता है, ताकि जो एयर हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है फ्रॉम दिस सक्शन लाइन, ये पिस्टन के बाउंड्रीज से और सिलेंडर के बाउंड्रीज से लीक ना हो कहीं पे. देयरफॉर दिस piston ring is attached. Then this piston and connecting rod are attached to each other by gudgeon pin. This pin is known as the gudgeon pin. इसे गजन पिन कहा जाता है. Then the connecting rod and crank is connected to each other by the crank pin. So this is the arrangement of a single cylinder reciprocating air compressor. Single cylinder reciprocating air compressor. Now please see here, before the suction line आपको क्या अटैच करना पड़ता है, एयर फिल्टर. समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू कंप्रेस द एयर एंड यूज इट फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो उस एयर को हमारे सिस्टम के अंदर लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सक करना पड़ेगा. वी नीड टू दी सक द एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर. जो एयर को मैं सक कर रहा हूँ इनसाइड माय पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट,
वो एयर डस्ट प्रूफ रहनी चाहिए, डर्ट प्रूफ रहनी चाहिए। सो उसमें से डस्ट पार्टिकल को, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, उनको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा। फाइन। सो ये एयर फिल्टर का काम क्या रहेगा, एयर को फिल्टर करने के लिए। सो नाउ वी हैव टू सी द वर्किंग ऑफ योर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सो योर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स रिक्वायर्स, आपको ये एनिमेशन दिख रही है बेटा? प्लीज एक जन कोई तो भी आपका ऑडियो चालू करके मुझे रिस्पॉन्ड दो। 10 बार स्क्रीन चेंज करना नहीं अच्छा लगेगा। Yes, sir. It is seeing. इट इज विजिबल ना? Yes, सो sir. so what is going to occur is that we have to study now the working principle of reciprocating compressor. अब मैं एयर को सप्लाई, सॉरी, मेरे पिस्टन को क्या कर रहा हूँ मैं, क्रैंक को मैं सप्लाई दे रहा हूँ फ्रॉम मोटर। हमने देखी थी मोटर कहाँ पे अटैच करते हैं, दिस इज दी मोटर, दिस इज माय क्रैंकशाफ्ट। तो मैं मेरे क्रैंकशाफ्ट को मोटर से पावर दूंगा। सो दिस इज माय क्रैंकशाफ्ट इन फ्रंट व्यू हियर। ये क्रैंकशाफ्ट को मैं मोटर से पावर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा सिलेंडर ऊपर नीचे हो रहा है। मेरा सिलेंडर, सॉरी, पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। नाउ एट दी सक्शन स्ट्रोक में दिख रहा है, दैट स्ट्रोक इज दी सक्शन स्ट्रोक। ये जो है यहाँ तक के सक्शन स्ट्रोक है। फिर उसके बाद जो रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो है डिलीवरी स्ट्रोक। दिस ब्लू कलर स्ट्रोक इज सक्शन एंड इट इज चेंजिंग टू डिलीवरी स्ट्रोक। तो जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो पिस्टन होता है ये टीडीसी पे रहता है। एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक योर पिस्टन इज एट टीडीसी। उसके बाद जब मैं क्रैंकशाफ्ट को पावर देता हूँ, ये पिस्टन को नीचे खींचती है। एट दैट टाइम माय सक्शन वॉल एंड डिलीवरी वॉल बोथ आर क्लोज्ड। मेरे क्या होते हैं, सक्शन वॉल और डिलीवरी वॉल क्या रहते हैं, दोनों क्लोज रहते हैं। जब मेरी क्रैंकशाफ्ट रन होगी और मेरा पिस्टन नीचे आएगा, तब क्या होता है, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, the pressure inside the cylinder is reduced below the atmospheric pressure, is reduced below the atmospheric pressure। तो क्या हो रहा है कि जब मेरा पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पिस्टन के अंदर का प्रेशर वुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से मेरा ये सक्शन वॉल खुल जाएगा और मेरी एयर सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। मेरी एयर सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। ये एयर कब तक सिलेंडर के अंदर आएगी, जब तक मेरा पिस्टन नीचे आते रहेगा। दिस एयर वुड एंटर सिलेंडर अंटिल द पॉइंट माय पिस्टन रीचेज द बॉटम डेड सेंटर। मेरा पिस्टन जब तक बॉटम डेड सेंटर रीच नहीं करता है, तब तक एयर क्या होगी, सिलेंडर के अंदर आती जाएगी। तब तक एयर क्या होगी, सिलेंडर के अंदर आती जाएगी। और जैसे ही मेरा सिलेंडर टीडीसी पहुंच गया, तब मेरा ये सक्शन वॉल जो है ये क्लोज हो जाएगा और अब कोई एयर अंदर नहीं आने वाली। देन देयर वुड बी नो एयर दैट वुड बी कमिंग inside the cylinder. This is about the suction stroke. This is about the suction stroke. Then then मेरी क्रैंक तो रोटेट हो ही रही है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मेरी क्रैंक रोटेट हो रही है। मेरा सक्शन हो गया। सक्शन के बाद जब बीडीसी के बाद मेरा पिस्टन ऊपर जाते जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही मेरा पिस्टन ऊपर जाते जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये वाले एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, कंप्रेस। एज बोथ दी वॉल्स आर क्लोज, एयर को बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एयर के ऊपर हम लोग वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दी वर्क ऑन दी एयर। तो ये पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होते जाएगा, जिसकी वजह से मेरा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द पिस्टन्स रेसिप्रोकेटरी मोशन, और जिसकी वजह से मेरा इनसाइड द सिलेंडर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरी एयर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। व्हेन द डिजाइन्ड प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्रेसर इज रीच्ड, मेरा क्या होगा, जो डिस्चार्ज लाइन का वॉल है या फिर डिलीवरी लाइन का वॉल है, वो अपने आप खुल जाएगा और वो प्रेशर की एयर मेरी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
सो दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक. उसके बाद जो रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट इज द डिलीवरी स्ट्रोक. दैट इज द डिलीवरी स्ट्रोक. तो यहाँ पे जो एनिमेशन है उसमें वही बताया गया है कि देयर इज सक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, देन देयर इज कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद है डिलीवरी. सो दिस इज हाउ यूर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स वर्क. This is how your reciprocating compressor work. So do you have any question regarding this? Please ask me if there is any question. सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो डिस्चार्जिंग वॉल्व है वो सक्शन के खुले करके सर। नहीं हो सकता, उसका डिजाइनिंग इतना वीक नहीं रहता बेटा. That is taken care while designing your assembly. It is not possible. सब कोई फेलियर के टाइम पे होगा. Then if it is like that, it means that your design is failed. So these walls are pressure operated walls, as I had told you before. These walls are operated because of the pressure difference. As the in the suction stroke, the pressure inside the compressor is reduced below the atmospheric pressure. This valve opens and air enters. उसके बाद दोनों वॉल क्लोज हो जाएंगे. फिर मेरा पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा सिलेंडर के अंदर का. और एक डिजाइन प्रेशर तक के पहुंचने के बाद मेरा डिलीवरी वॉल्व खुल जाएगा और एयर को बाहर डिलीवर कर देगा. एयर को बाहर डिलीवर कर देगा. सर यस. सर वो वॉल का फंक्शनिंग कैसे रहेगा, मतलब वो ओपन कैसे होंगी सक्शन के टाइम पे और फिर डिलीवरी के टाइम पे? सक्शन के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे बेटा अथंग, वही मैंने बताया कि दिस बोथ वॉल्स, द सक्शन वॉल एंड डिलीवरी वॉल्स, आर प्रेशर ऑपरेटेड वॉल्स. प्रेशर ऑपरेटेड वॉल्स का मतलब क्या रहता है? स्प्रिंग ऑपरेटेड. क्या रहता है? स्प्रिंग ऑपरेटेड. तो स्प्रिंग ऑपरेटेड कैसे रहेगा वो? अगर समझ लो ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन ये वॉल को मैंने क्लोज करके रखा हुआ है, ये वॉल को क्लोज करके रखा हुआ है, और सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे मेरा प्रेशर चेंज हो गया. मेरा प्रेशर क्या हो गया? चेंज हो गया. तो प्रेशर चेंज होने के कारण स्प्रिंग क्या हो जाता है? लिफ्ट हो जाता है और वो वॉल को ओपन कर लेता है. सो दिस बोथ वॉल्स आर प्रेशर ऑपरेटेड. दिस वॉल at the suction line operates because of the pressure difference between the atmospheric pressure and the pressure inside the cylinder, जो कि वैक्यूम क्रिएट करने लगता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करने लगता है. और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो आप डिजाइंड प्रेशर दोगे ये वाले वॉल को, डिजाइंड प्रेशर का मतलब क्या है? इफ आई वांट pressure of my compressed air as 10 bar, so the force equivalent to 10 bar I have to supply to this spring of your delivery wall. तो जब तक के 10 बार रीच नहीं होगा तब तक ये डिलीवरी वॉल क्या होगा? खुलेगा नहीं. जैसे ही 10 बार प्रेशर उसका की इक्विवेलेंट सर फोर्स मिल जाएगा. उसका एक लिमिट रहता होगा ना सर कि मतलब ये लिमिट में वो खुलेगा करके एक हाँ, तो वैल्यू वही मैं रहती होगी ना बता रहा सर। हूँ ना, वो लिमिट हमारे ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 10 बार. अगर मुझे 10 बार प्रेशर की एयर चाहिए तो ये 10 बार पे खुलेगा. इफ आई एम ऑपरेटिंग इट टू 15 बार तो ये 15 बार पे खुलेगा. तो दैट डिपेंड्स ऑन मी. ये किसी और के ऊपर नहीं. जो एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को, वो डिजाइन प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि डिलीवरी वॉल कब खुलने वाला है. कोई कंप्रेसर के लिए वो हो सकता है कि 2 बार पे ही खुल जाए. लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कंप्रेसर चाहिए जब 10 बार पे ही प्रेशर चाहिए मुझे एयर का, तो ये डिलीवरी वॉल 10 बार पे ही खुलेगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं. So this delivery wall depend gives you the pressure that you want. तो डिलीवरी वॉल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे 2 बार पे खुलवाना है, 4 बार पे खुलवाना है, 6 बार पे खुलवाना है. उसके इक्विवेलेंट आप उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो कोई कोई कंप्रेसर में अरेंजमेंट रहती है उसको चेंज करने की, कोई कोई कंप्रेसर्स में नहीं रहती है. सो दिस इज इज हाउ यूर reciprocating compressor work. This is how your reciprocating compressors work. Is it clear? If you want any questions, you can ask me again.
Do anybody have any questions? No, sir. Okay, fine. Then we will move forward. So now again, two things you need to understand regarding the compressors हो जाए या फिर इंजिन्स हो जाए. आप लोगों को कोई तो भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा इन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर रिलेटेड टू कंप्रेसर्स एंड रिलेटेड टू इंजिन्स. क्योंकि उसकी जो समझ लो कि ब्रेक पावर को शाफ्ट पावर भी कहा जाता है कभी कभी. सो देयर इज एन formula of efficiency of an engine and formula of efficiency for your compressor, and there come two terms. वहां पे दो टर्म आती है. पहले रहती है इंडिकेटेड पावर और दूसरा रहता है ब्रेक पावर. पहला रहता है इंडिकेटेड पावर, दूसरा रहता है ब्रेक पावर. सो इंडिकेटेड पावर यानी कि क्या? इंडिकेटेड पावर यानी कि क्या? So power which is available with you at the piston, be it is a engine or be it a compressor. कोई भी रहे, compressor रहे या फिर आपका इंजन रहे, जो पावर आप लोगों के पास पिस्टन पे अवेलेबल है that power is the indicated power. और जो पावर आपके पास शाफ्ट पे अवेलेबल है that is brake power. That is brake power. तो ये आपको समझना पड़ेगा. इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर, इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, आपका ब्रेक पावर और शाफ्ट पावर विल बी मोर देन द इंडिकेटेड पावर. इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसर, आपका जो कंप्रेसर है उसमें ब्रेक पावर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, इंडिकेटेड पावर कम रहेगा. सो इफिशियंसी of any compressor is defined as neta mechanical is equals to indicated power divided by shaft power or the brake power. So mechanical efficiency or the efficiency of your compressor is defined as indicated power upon brake power. Indicated power and brake power. तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो शाफ्ट के ऊपर, सॉरी, जो पिस्टन के ऊपर पावर आप लोगों के पास अवेलेबल है दैट पावर इज नोन एज इंडिकेटेड पावर. दैट पावर इज नोन एज इंडिकेटेड पावर. और जो पावर आपके पास शाफ्ट पे अवेलेबल है दैट पावर इज नोन एज शाफ्ट पावर और द ब्रेक पावर or the brake power. For compressor, your indicated power is going to be always less than the brake power or the shaft power. Okay. Then how can a reciprocating air compressor be classified? ये भी थोड़ी समझने वाली चीज है. इसके ऊपर भी टेक्निकल थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कभी भी. तो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, अब ये समझना है हमें कि सिंगल एक्टिंग कैसे काम करते हैं और डबल एक्टिंग कैसे काम करते हैं. जो हम लोगों ने इससे पहले डायग्राम देखी है, दिस एनिमेशन इज रिलेटेड टू द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर. सिंगल एक्टिंग यानी कि क्या? देयर इज ओनली सिंगल सक्शन वॉल और द सक्शन लाइन एंड सिंगल डिलीवरी लाइन. जो कंप्रेसर्स में, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में सिर्फ एक ही सक्शन लाइन और डिलीवरी लाइन है, दोज आर नोन एज द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. Those are known as the single acting reciprocating compressor. For example, in this diagram, you are going to find only single intake and single outlet. Single intake and single discharge. Single intake, single discharge. दूसरी कोई जगह नहीं है. For example, in double acting अगर मैंने लिया तो double acting compressors यानी कि क्या? There would be two inlet and two outlet. जो पिस्टन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इट इज सेंट्रली माउंटेड पिस्टन
inside the cylinder. ये कुछ तो भी टीडीसी तक यहाँ पे जा सकता है एंड कुछ तो भी बीडीसी तक यहाँ पे आ सकता है, और ये इन दोनों लाइन के बीच में रेसिप्रोकेट होते रहेगा, तो दोनों तरफ मुझे डिस्चार्ज, सक्शन एंड डिस्चार्ज मिलेगा। यहाँ पे एक साइड से सक्शन हो रहा है समझ लो, दूसरे से डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे इधर साइड से सक्शन होगा, इधर साइड से डिस्चार्ज होगा, तो ये दोनों साइड ऑफ योर सिलेंडर यूटिलाइज कर रहा है। दिस अरेंजमेंट इज यूटिलाइजिंग both the sides of your सिलेंडर एज एन इनटेक एंड डिस्चार्ज। पर यहाँ पे जो सिंगल एक्टिंग रहता है, सिर्फ एक ही साइड ऑफ द पिस्टन्स आपका सिलेंडर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है फॉर इनटेक एंड डिस्चार्ज। सो के वैल्यू हियर इज 1 फॉर सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और फॉर डबल एक्टिंग 2 हो जाएगी। ये क्या के क्या है हम आगे समझते हैं। देन सम ऑफ द डेफिनेशंस रिलेटेड टू कंप्रेसर्स हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या चीजें हैं। वन इज द स्विफ्ट वॉल्यूम। Sorry, just give me a second. Sorry. So we have to understand some of the definitions. So what is swept volume? The swept volume means the volume which is traveled by your piston. The volume of the cylinder which is traveled by your piston. So it will be given by pi by 4 d square L. So what is here pi by 4 d square? ये pi by 4 d square यानी कि क्या है? So pi by 4 d square is going to give me the area of your piston. And this area of your piston multiplied by the stroke length, that is the distance between the TDC and the BDC. The distance between the top dead center and the bottom dead center is known as stroke. And the multiplication of the piston area with the stroke will give me the swept volume. So this is the volume which is swept by your piston. Therefore, it is known as the swept volume. Therefore, it is known as the swept volume. क्योंकि ये इतना वॉल्यूम आपका पिस्टन क्या करता है, ट्रेवल करता है, इसलिए उसे कहा जाता है स्वेफ्ट वॉल्यूम। देन देयर कम्स द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम यानी कि क्या, द वॉल्यूम between the cylinder head and the piston head when at top dead center. For example, this is my TDC, this is my TDC, and this is the face of my cylinder. So the distance between or the volume between the TDC and the upper face of your cylinder of the piston cylinder arrangement gives me the clearance volume. Gives me the clearance volume. So and then there comes the clearance ratio. Clearance ratio यानी कि क्या है? The clearance volume divided by swept volume. It gives me the ratio between the clearance volume and the swept volume. ये सब फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। आपको इंजन में भी ये फॉर्मूलाज काम आएंगे, इंटरनल कंबशन इंजिन में भी सेम फॉर्मूलाज आप लोगों को काम आएंगे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि compressors are work consuming device and engines are work producing device। उसकी वजह से आपका फॉर्मूलाज में थोड़ा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी हर चीजें सेम है। So this is the clearance volume. Clearance volume is the ratio between the clearance ratio is the ratio between your clearance volume and swept volume. So had you gone through this? समझ गया आप लोगों को? पूछ लीजिए मुझे अगर कुछ डाउट होगा आपको तो अभी क्लियर कर देंगे। Do anybody have any doubt? Okay then. So then there comes a most important point to be understand in the compressors. It is the free air delivered.
So what is the free air delivered or the free air delivery? Can anybody from final year try to explain me this? Yes. How many of you are from final year? Yes, there. Somebody from final year. Can you answer the question? What is the free air delivery? Hello. Can anybody from final year answer the question? What is free air delivery? Okay, fine. So what actually free air delivery is? It is the air is delivered by the compressor after compression for your ambient condition. So as you all know, ambient conditions vary geographically. Ambient condition vary geographically. The density of air, the temperature of air, sorry, will vary geographically on the Earth's surface. So what particularly free air delivery is? It is the measure given to your compressor for telling its capacity or for defining its efficiency, you can say in other words. That is how much free air delivers will be will denote how efficient or how good your compressor is. So the free air delivery, it is the volume of air delivered by compressor under the compressor intake conditions. Means at particular temperature, pressure and volume, air will be sucked and it will be introduced inside the cylinder. Then after that, it would be compressed. कंप्रेशन करने के बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कम ज्यादा कुछ तो भी बढ़ जाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा जब मैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करूंगा तो वो एम्बिएंट कंडीशन में उसको रिलीज करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा फ्री एयर डिलीवर्ड. So this parameter, that is free air delivered, is given in meter cube per minute. It is given in meter cube per minute, and the free air delivered by your compressor will give an account or the same value at different particular geographic conditions. So this free air delivered is going to be same at every geographical location, irrespective of your ambient condition for that sense. So this any compressor in the market is being sold at this free air delivered point. कि उसकी कैपेसिटी अगर मुझे डिफाइन करना है कंप्रेसर की तो वो मैं प्रेशर रेंज के हिसाब से ना करते हुए फ्री एयर डिलीवरी के रेंज में मैं करता हूँ कि मेरा ये जो कंप्रेसर है ये इतनी फ्री एयर डिलीवर करता है. सो दिस इज द मेजर ऑफ योर सम कैपेसिटी फॉर सम ऑफ योर compressors. If the volume of air compressor is reduced to atmospheric temperature or pressure, the volume of it is called free air delivered. So now there comes again some parts of thermodynamics. If, for example, compressor is an work consuming device, if compressor is an work consuming device, तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरे compressor ने कम से कम वर्क कंज्यूम करना चाहिए. If I am designing my compressor or I want to use compressor for a particular
फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरे कंप्रेसर ने वर्क कम कंज्यूम करना चाहिए, मेरे कंप्रेसर ने वर्क कम कंज्यूम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं कौन सी कंप्रेशन की प्रोसेस यूज करूं ताकि मेरा कंप्रेशन को लगने वाला वर्क कम रहे, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। So you had learned the types of compression or the types of processes, the thermodynamics processes in your engineering thermodynamics, वही processes हमें यहाँ पे थोड़ी देखना है। So there are three different processes according to which we can govern our compression process. The first is the reversible adiabatic compression or the isentropic compression. पहली प्रोसेस कौन सी है? आइसेंट्रोपिक और द रिवर्सिबल एडियाबैटिक, which is PV to the power gamma is equals to constant. So this isentropic process is defined as PV to the power gamma is equals to constant. Then the polytropic compression. Now the polytropic compression is given as PV to the power n is equals to constant. So this n index defines the polytropic process. This gamma index here defines the isentropic process. So now this value of n, when it will be equivalent to gamma, then this polytropic process will be converted into the isentropic process. ये चीज हमें ध्यान में रखना है. Then isothermal process where temperature is constant, therefore PV is equals to constant in the isothermal process. तो ये तीन प्रोसेस में से मुझे लगने वाला वर्क, कंप्रेशन को लगने वाला वर्क किसमें कम रहेगा ये मुझे समझना है, और क्यों कम रहेगा ये भी मुझे समझना है. Just 1 second. So now, so now, condition for minimum work. What do the area under PV curve defines? Anybody from you? Area under pressure volume वर्क curve मुझे क्या बताता है? Can anybody tell me? वर्क Who had answered that? वर्क सर अथांग बागड़े. Okay. So area under PV curve मुझे क्या बताता है? Work. तो for example, if I am drawing the PV diagram for my compressor, for example, I am drawing PV diagram for my compressor. So this diagram here tell me this is the pressure volume diagram for my air compressor, जिसमें process 4 to 1 defines the suction of air from the atmospheric condition. Process 4 to 1 define the suction process. Process 1 to 2, 2 dash and 2 double dash defines some of the compression processes. ये कोई तो भी compression process को define कर रही है. Then 2 to 3 defines the discharge process. तो ये वाले PV diagram में क्या हो रहा है? 4 to 1 is the suction at atmospheric pressure, and 2 to 3 is discharge at particular designed pressure or particular application pressure, and process 1 to 2, 2 dash, 2 double dash shows the compression process. Ab ideally, if PV diagrams gives me the work transfer required to run the compressor, if this PV diagram area under these PV diagrams tells me the work that to be transferred to my compressor, then which of these lines, for example green, red or black, will give me the minimum
will give me the minimum of the work or the minimum of the work transfer that would be required to run the compressor. कौन सी लाइन देगी बेटा मुझे? If I consider from this two double dash और two dash point, सबसे कम एरिया कौन से कर्व के अंडर में रहेगा? 2 dash. टू डैश. तो जब टू डैश अगर सिलेक्ट करता हूं मैं, इफ आई सिलेक्ट दिस टू डैश पॉइंट, तो ये पॉइंट के सिलेक्ट करने के बाद मुझे जो मेरी प्रोसेस मिल रही है 1 to 2 डैश, ये वाली कंप्रेशन प्रोसेस मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम वर्क ट्रांसफर, इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम वर्क ट्रांसफर टू रन माय कंप्रेसर, एंड दैट प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. सो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लेता हूँ कंप्रेशन की, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम वर्क लगेगा मुझे मेरे कंप्रेसर को रन करवाने के लिए. ये हमें समझना पड़ेगा. तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम्स दी जाती है, पीवी चार्ट्स दिए जाते हैं आपको, ऐसे पीवी डायग्राम दी जाएगी, उसमें प्रोसेस मार्क की जाएगी सेम तरीके से, लेकिन वहां पे ऐसे डिफरेंट लाइंस में प्रोसेस नहीं रहेगी, ऐसे डिफरेंट लाइन में प्रोसेस नहीं रहेगी, सॉरी कलर्स में. सिर्फ नाम दिया जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज एन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दिस इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो ये 3-4 प्रोसेस में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें मिनिमम वर्क लगेगा मेरे कंप्रेसर को रन करवाने के लिए? तो यू हैव टू मार्क द ऑप्शन which will be related to isothermal process. If I select the compression process as an isothermal process, so there will be minimum work required to run my compressor, to run my compressor. So had you all get this? आप सब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? So for an reciprocating compressor, isothermal process will require minimum work in order to achieve that compression for a particular design point, for a particular design. और उसी की तरह मैक्सिमम वर्क कब लगेगा? व्हेन माय प्रोसेस इज एडियाबैटिक, विच इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना बेटा, कि आइसोथर्मल प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन आपको पता रहना चाहिए. हो सकता है वहां पे लिख के ना आए क्या दिस इज आइसोथर्मल, वहां पे बोले कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी कि क्या है? तो आइसोथर्मल है, ये आपको पता रहना चाहिए. इफ आई एम सेइंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, pv to the power n is equals to constant, वहां पे हो सकता है सिर्फ लिखा है कि pv to the power n is equals to constant. तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है बहुत बार. तो उसी की तरह मैक्सिमम वर्क कब लगेगा मुझे? व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक. तो ये भी पता रहना चाहिए कि लोवेस्ट वर्क कब लगने वाला है? व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल. हाईएस्ट वर्क कब लगने वाला है? जब प्रोसेस इज एडियाबैटिक. और वो दोनों के बीच में रहेगा मेरा पॉलीट्रोपिक. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में फंसा है मेरा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. सो दिस इज व्हाट मिनिमम वर्क कंडीशन फॉर योर compressors. So now we have to go through some of the points again related to the uh, reciprocating compressor. आपको 2-3 चीजें और पता रहनी चाहिए. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, विथ क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, और मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स क्या है, और मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स क्या है. सो अगर मैं बोलूंगा सिंगल स्टेज कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस, सो दिस इज एन डायग्राम PV chart of the single stage compressor without clearance, विदाउट क्लियरेंस. और अगर आप यहाँ पे नोट करोगे, सो यहाँ पे दिया गया है pv टू द पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा? व्हाट इज pv टू द पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि कौन सी कंप्रेशन की प्रोसेस है ये? यस एनीबॉडी? Polytropic. इट इज पॉलीट्रोपिक. गुड. तो ये आप लोगों को ऐसे समझना चाहिए. एंड मैक्सिमम प्रोसेसेस
For compression, inside the compressor is an polytropic process because it is not easy to achieve isothermal compression. To achieve isothermal compression, आइसोथर्मल कंप्रेशन हम लोग ऐसे अचीव नहीं कर सकते. उसके लिए प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल सिलेंडर्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेशन करते समय हीट बढ़ती है. कंप्रेशन करते समय हीट बढ़ती है, जिसकी हीट क्या करता है, हमारा सिलेंडर का मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है. वो मटेरियल अगर हीट एब्जॉर्ब कर जाए तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप लोग आइसोथर्मल कंप्रेशन अचीव नहीं कर सकते हो. वो सिलेंडर को हमें रेगुलरली कूल करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे कंप्रेशन की प्रोसेस को आइसोथर्मल कंप्रेशर में कन्वर्ट कर पाएंगे. इसलिए टू अचीव आइसोथर्मल कंप्रेशन practically it is not feasible to make those arrangement. Hence polytropic processes are used inside the compressor to achieve compression. ये भी हमें पता रहना चाहिए. therefore here यहाँ पे हमने pv to the power n is equals to constant बोला है. So this is the PV diagram with without clearance compressor. क्लियरेंस का विदाउट क्लियरेंस का मतलब क्या है, तो आपका जो TDC है that is overlapping with the सिलेंडर हेड. जो आपका टॉप डेड सेंटर है वो सिलेंडर हेड के लाइन के ऊपर आ गया है. तो यहाँ पे आपको कोई क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं दिख रहा है. डायरेक्ट 4 पॉइंट से आपका सेक्शन चालू होगा, 4 से 1 सक्शन जाएगा, 1 से 2 क्या जाएगा, कंप्रेशन जाएगा, 2 से 3 डिस्चार्ज जाएगा, 2 से 3 डिस्चार्ज जाएगा. सो दिस इज सिंगल स्टेज कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस एंड प्रोसेस इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. This diagram or the PV diagram is also known as indicator diagram for the compressor. ये भी हम लोगों को पता रहना चाहिए कि इसे कहा क्या कहा जाता है. प्रोसेस 4 to 1 induction or the suction process. Process 1 to 2 is the compression, which is precisely polytropic compression, and then 2 to 3 is the discharge or the delivery. तो इसकी वर्किंग भी सेम तरीके की है जिस तरीके से हमने देखा है. Now, area under the indicator diagram or the PV charts give me the work per cycle required for compression. तो एरिया अंडर 41234. तो ये जो पॉलीट्रोपिक वर्क ट्रांसफर है, आप लोगों ने ये वाला पॉइंट भी पढ़ चुके हो फिर से. सो वर्क रिक्वायर्ड फॉर पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन इज गिवन बाय n अपॉन n-1 P2V2 माइनस P1V1 किलो जूल पर साइकिल. इतना वर्क मुझे ये वाले कंप्रेशन के प्रोसेस के लिए देना पड़ेगा. सो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, n upon n-1 P2V2 minus P1V1. This formula we had derived in thermodynamics. आप लोगों ने thermodynamics में derive किया है. Work transfer for an polytropic process. Work transfer equation for an polytropic process. यह thermodynamics में आप लोग 4th semester में कर चुके हो. So and this n is nothing but the index of compression, कि कितना index of compression है वो डिफाइन करेगा. एंड P1 V1 कहाँ से आएगा हमारा, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू MRT. वहां से हम लोग ये सब कर सकते हैं. एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू दिस पार्ट, n upon n-1 is equal to MRT1 T2 minus T1 minus T1. So this is in terms of temperature. This is indicated work or the work transfer required to run this compressor for particular temperature difference. तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस का ये इक्वेशन यूज करेंगे. T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 n-1 अपॉन n. तो ये चीजें आप लोगों को पूरी तरीके से पता रहनी चाहिए, पूरे प्रोसेसेस के फॉर्मूलाज. सो वर्क ट्रांसफर इस तरीके से हमें पूरी तरीके से मिल जाएगा किलो जूल पर साइकिल में. दिस इज द इंडिकेटेड वर्क और इंडिकेटेड पावर. Then there comes the volumetric efficiency. This is one of the measure to find out how effective your compressor is. This is one of the measure to find out how effective your compressor is. How effective your compressor is. So what is the formula for volumetric efficiency? Actual volume of air
रेफर टू फ्री एयर कंडीशन, मतलब फ्री एयर कंडीशन से जो मुझे एयर मिल रही है इन मीटर क्यूब पर मिनट डिवाइडेड बाय स्वेफ्ट वॉल्यूम, मतलब मेरे वो कंप्रेसर का स्वेफ्ट वॉल्यूम कितना है, वो कितना वॉल्यूम स्वेफ्ट कर रहा है और कितनी फ्री एयर डिलीवर्ड मुझे मिल रही है. सो दिस इज volumetric efficiency, free air delivered FAD divided by swept volume, divided by swept volume, which is V1 by Vs, which is V1 by Vs. So, and Vs is calculated as pi d square ln k, and this k defines here the सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कंप्रेसर. हम लोगों ने सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर भी देखा है और डबल एक्टिंग कंप्रेसर भी देखा है. सो यहाँ पे k is equals to 1 for single acting compressor and k is equals to 2 for double acting compressor. सेम वे जैसे हमारा यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला डिफाइन किए हैं फॉर इंडिकेटेड वर्क फॉर एन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, सेम वे इधर हम लोगों को फिर से डिराइव करना है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या लगेगा. तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का एक इंडेक्स क्या रहता है, गैमा. गैमा के इक्विवेलेंट ये इक्वेशन है. सेम वे उसी के इफ इट इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो उसकी आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी रहेगी एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क. आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल से रिलेटेड फॉर्मूलाज यूज करेंगे. तो ये प्रोसेसेस की ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा. हाँ, हमने विदाउट क्लियरेंस डायग्राम देखी है, इंडिकेटर डायग्राम. दिस इज विथ क्लियरेंस इंडिकेटर डायग्राम. नाउ दिस लाइन, ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये गैप आपको डिफाइन करेगी क्लियरेंस वॉल्यूम. ये जो गैप है ये क्या डिफाइन करेगी, क्लियरेंस वॉल्यूम. This gap here defines the clearance volume for your particular compressor. For your particular compressor. Process 4 to 1 सेम वे क्या रहेगी, सक्शन प्रोसेस. प्रोसेस 1 to 2 क्या रहेगी, कॉम्प्रेशन प्रोसेस. यहाँ पे भी PV to the power n is equals to constant कहा गया है. तो ये भी प्रोसेस कौन सी हो गई है, दिस इज ऑल्सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. 2 to 3 क्या रहेगा, डिलीवरी. फिर से 3 to 4 क्या रहेगा, सम एक्सपांशन. नाउ हियर ड्यू टू एडिशन ऑफ क्लियरेंस, अगर आप लोग चेक करोगे तो ये वाले पॉइंट से लेके ये फोर्थ वाले पॉइंट तक आपको थोड़ी गैप दिख रही है, थोड़ी गैप दिख रही है. ये गैप क्या है ये हमें समझना पड़ेगा. दिस नाउ पॉइंट 3 से लेके पॉइंट 1 तक के ये है स्विफ्ट वॉल्यूम, और ये P1 से लेके ये वाले पॉइंट तक की ये जो गैप है दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम. So this would be the swept volume of your piston and this is the clearance volume. So now this is effective swept volume. हमें देखना है कि ये गैप क्या है, ये गैप क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा. So now due to कि हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे कंप्रेसर में, we would compress air above atmospheric condition. और हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा, कंप्रेशन का वेरी फास्ट रहेगा. कि आप लोग क्या स्लो स्लो कंप्रेसर या फिर पिस्टन को रन करवाओगे क्या, आपको समझ में नहीं आएगा कि सक्शन कब हो रहा है, डिलीवरी कब हो रहा है. ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है एक्चुअल कंप्रेसर के अंदर. बहुत जल्दी जल्दी सक्शन और कंप्रेशन होते जाते हैं. नाउ ड्यू टू दैट कि हमारा कंप्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, कि सक्शन कब होगा डिलीवरी कब होगी ये नहीं समझेगा. तो ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव सॉफ्ट वॉल्यूम एंड द इफेक्टिव सॉफ्ट वॉल्यूम जो आ रहा है मेरा, दैट इज पॉइंट नंबर 5 से लेके 4 तक के जो गैप मेरी आ रही है इन सक्शन, ये डिफरेंस काय की वजह से आ रहा है. तो दिस इज ड्यू टू द टाइम लैग विच आई एम गेटिंग इन बिटवीन टू कॉम्प्रेशन प्रोसेस. तो कभी कभी क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर निकलने का ही रहेगा, तो मेरा पिस्टन क्या करेगा, रिटर्न मोशन चालू कर देगा, जिसकी वजह से नए आने वाले एयर को जगह नहीं मिलेगी.
जिसकी वजह से नए आने वाले एयर को जगह नहीं मिलेगी और मुझे ये इतना वॉल्यूम कम मिलेगा inside my cylinder. So this difference between effective swept volume and swept volume must be as low as possible in actual reciprocating compressor. In actual reciprocating compressor. So this I am getting is due to the time lag for operation of my compression process. Operation of my compression process. So these are some of the formulas that would be required to solve the numericals. हम लोग न्यूमेरिकल अगले सेक्शन में करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूलाज आप लोगों के पास लिख के रहना चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। मैं आपको एक अलग से शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे वो मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। इनमें से कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज आपने भी यूज कर लिए होंगे इससे पहले, ये मैं आप लोगों को आगे में प्रोवाइड करूंगा। नाउ do you have any question for reciprocating air compressor? You can ask me. If anybody has any question for reciprocating air compressor, you can ask me. Or we would move to the rotary air compressor. To rotary air compressor. Okay then. So what is a rotary air compressor? We must understand. Before before knowing what is an rotary air compressor, there is one concept that you understand, that you must understand. Some of the rotating device or reciprocating devices are known as positive displacement devices, are known as positive displacement devices। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइसेस यानी कि क्या, जो डिवाइसेस वॉल्यूम को रिड्यूस करके प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे डिवाइसेस को वी कॉल इट एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कंप्रेसर, द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो ऐसे कंप्रेसर्स जिसके अंदर हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करके, सॉरी, वॉल्यूम को रिड्यूस करके प्रेशर को बढ़ाएंगे, आर नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। एंड वन ऑफ इट्स एग्जांपल इज reciprocating compressor. One of its example is reciprocating compressor. Same way रोटरी कंप्रेसर्स के अंदर में भी कैसे रहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल द वेंट टाइप और द रूट ब्लोअर। ये ऐसे कोई कंप्रेसर्स, रोटरी कंप्रेसर्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। देन देयर आर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइसेस और द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स, द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, तो जिसके अंदर में आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स आ जाएंगे। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर is one of the most important compressor that you will come across in your day-to-day life, because these application of the axial flow compressors are very vast, are very vast, जहाँ पे आप लोगों को वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर लग रही है पर सेकेंड, पर वॉल्यूम। ऐसे जगह पे आप लोग क्या करोगे, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स यूज करोगे, आप क्या करोगे, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स यूज करोगे। और एग्जांपल ऑफ दैट एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आर द कंप्रेसर विच आर यूज्ड इन योर एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स हो जाए, जो भी प्लेन आपका गैस टरबाइन के ऊपर ऑपरेट करता है, ब्रेटॉन साइकिल के ऊपर ऑपरेट करता है, उसके अंदर आपको एक्सियल फ्लो कंप्रेसर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स मिलेगा, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स मिलेगा। So now these rotary air compressors are mainly of 5 types: vent type, screw type, root blower, centrifugal compressor, axial flow compressor. Some of which are the positive displacement, some of which are the negative displacement.
Now we are going to see some of the animation videos in order to understand the basic working of this rotary compressor. In order to understand this working of the rotary compressor. So first we will see the vent type compressor. So what is in the construction of this rotary vane compressor is these eccentric vanes. For example, if you see this center or the point where these all vanes are attached to each other is not exactly at the center of this circular cross sectional casing. ये जो हमारी है ये आउटर केसिंग है, अगर आप देखोगे तो ये आउटर केसिंग है. ये सर आउटर स्क्रीन शेयर केसिंग. नहीं मिली है. हेलो हेलो, is it not visible to you all? Yes, visible नहीं है अतंग? Okay, just give me a second, just a minute. Just give me a second, huh? It won't be visible to you. Is my screen visible to you? Please unmute yourself and confirm so that I can proceed further. Yes sir. Okay, fine now. So this is a type of rotary compressor known as vane type compressor. This is the circular cross section or the casing of the rotary compressor or the vane type compressor. These number of vanes, these are known as vanes. This number of vanes are attached to a point, and this point is eccentric from the center of this cross sectional casing, circular cross sectional casing. So due to this eccentricity, if you note, the volume at this point is different and volume at this point is different. Volume here is more, volume here is less due to this eccentricity. So कैसे काम करता है आप अभी देख लेंगे हम वेन ब्लो. So this is an vane type compressor. This is an housing or casing. These are vanes. हाँ, so this is the inlet. यहाँ से क्या होगा, हमारा सक्शन होगा, and this is the outlet. This is an drive shaft off center. ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी यहाँ पे वॉल्यूम का डिफरेंस आ रहा है. तो आप लोग देखोगे कि ये वेन्स रोटेट हो रही है, ये वेन्स रोटेट हो रही है. तो यहाँ से एयर आ गई, इतने वॉल्यूम की एयर आ गई है, इतने वॉल्यूम में एयर आ गई है. दिस इज द सक्शन. जैसे वेन रोटेट होंगे ये जो एयर है ये कॉम्प्रेस होते जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है. दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम रिड्यूस्ड वॉल्यूम पॉसिबल, दिस इज द मिनिमम रिड्यूस्ड वॉल्यूम पॉसिबल. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एयर आ गई, वॉल्यूम कम होते गया, यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम आ गया तो मेरी कॉम्प्रेशन की प्रोसेस हो गई. आई हैड रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड compressed the air. So which type of compressor would this be? Is it a positive displacement or negative displacement compressor?
I had reduced the pressure due to sorry, I had reduced the volume. Due to reduced volume, my pressure is increasing. My pressure is increasing. तो ये कौन से टाइप का कंप्रेसर हो गया मेरा? ये कौन से टाइप का कंप्रेशन हो गया मेरा? कैन एनीबॉडी? Is it a positive displacement compressor or negative displacement compressor? The question may come to differentiate between the positive and negative negative displacement compressor. हो सकता है मैच दी पेयर में दे दे आपको कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इनमें से कौन सा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन सा है. So what would be this? I had reduced my volume. Due to reducing my volume, my pressure is increasing. So this is your positive displacement compressor. यहाँ से इनलेट होगा, इनटेक होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा. So this is about the vent type rotary compressor. This was the vent type rotary compressor. Then we have screw type compressor. Then we have the screw type compressor. So in screw type compressor, जो आपके स्क्रू टाइप कंप्रेसर्स होते हैं, स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर होता है, उसमें क्या होता है, तो these are the screws or the rotating shafts which are grooved in between. ये जो है ये ग्रूव्स है. इन ग्रूव्स के बीच में क्या होती है, मेरी एयर जाती है. क्या होती है, मेरी एयर जाती है. और ड्यू टू दिस रोटेशन, ये रोटेशन होते जाएगा, रोटेशन होते जाएगा, फिर एयर को सक करेगा और सक करते करते इधर आते जाएगा. इन ब्लू कलर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन ब्लू कलर इज द सक्शन पार्ट ऑफ योर एयर. यहाँ से एयर सक करेगा, सक करने के बाद यहाँ पे मेरे स्क्रू में जाएंगी. वो स्क्रू में जाते जाते वो क्या होगी, ये स्क्रू का हेलिक्स ऐसे मेंटेन किया जाता है ताकि स्पेस कम हो जाए, ताकि क्या हो जाए, स्पेस कम हो जाए. और वो स्पेस कम हो जाने के कारण क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा. और वॉल्यूम कम हो जाने के कारण क्या होगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा. क्या होगा, मेरा प्रेशर बढ़ेगा. सो इन दिस स्क्रू टाइप कंप्रेसर ऑल्सो, in this screw type compressors also, your pressure is increasing because of decreasing volume. Your pressure of air is increasing because of decrease in volume, because of decrease in volume. And hence this is also an positive displacement compressor. This is also an positive displacement compressor. सेम वे मेरा रूट ब्लोवर है, सेम वे मेरा रूट ब्लोवर है. रूट ब्लोवर इज ऑल्सो एन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर. रूट ब्लोवर इज ऑल्सो एन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर. तो ये जो मेरे लोब्स है, दिस आर नोन एज दी लोब्स. ये दो लोब्स के बीच में मेरी एयर ट्रैप हो जाएगी, ये दो लोब्स के बीच में मेरी एयर ट्रैप हो जाएगी. और वो एयर ट्रैप हो जाने के कारण, वो एयर ट्रैप हो जाने के कारण एक साइड से सक्शन हो रहा है और एक साइड से डिलीवर. ये यहाँ पे कंप्रेशन का इवेंट होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह पे कंप्रेशन होगा. यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा. और ये कंप्रेशन भी कैसे रहेगा, हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन रहेगा. हेंस रूट ब्लोअर आर ऑल्सो द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, आर ऑल्सो द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर. तो ये आपको विजुअल्स इसके पता रहने चाहिए, कंप्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से कंप्रेसर में. कभी कभी आपको विजुअल डायग्राम्स दी जाती है और आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि कंप्रेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, मार्क करके पॉइंट 1 2 3 4 दिए जाते हैं. और कहा जाता है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन विच इज ऑकरिंग इन दिस
टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर, तो आपको आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कि इफ देयर इज एन वेन टाइप कंप्रेसर, तो वेन टाइप कंप्रेसर में एक्चुअल कंप्रेशन कैसे होते हुए आ रही है, और स्क्रू टाइप में कैसे होते हुए आ रही है, रूट ब्लोअर में कैसे होते हुए आ रही है, तो ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देन देयर कम द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. Then there comes the centrifugal compressors. Now, अभी तक के हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कंप्रेशन की प्रोसेस कैसे जनरेट कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम. हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. बट इन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स, इन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हम लोग ऐसे कंप्रेशन अचीव नहीं करते. फॉर दैट वी यूटिलाइज एंड डिफ्यूजर. हम डिफ्यूजर को यूज करते. डिफ्यूजर क्या है, कैसा डिवाइस है, तो ये आप लोग सभी को पता है कि व्हाई डिफ्यूजर आर यूटिलाइज. नोजल क्या करता है हमारा, नोजल क्या करता है, प्रेशर कम करके वेलोसिटी बढ़ाता है. और डिफ्यूजर का काम क्या है, वेलोसिटी कम करके प्रेशर बढ़ाना. वेलोसिटी कम करके प्रेशर बढ़ाना. दिस इम्पेलर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू गिव वेलोसिटी टू योर सक्ट एयर. जो सक्शन से एयर आएगी उस एयर को वेलोसिटी देता है, और फिर वो हाई वेलोसिटी एयर को हम लोग डिफ्यूजर से पास करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. सो these centrifugal compressors are known as the negative displacement compressors. Are known as the negative displacement compressors. Okay, so these are the negative displacement compressor. तो हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है, वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है. सेंट्रीफ्यूगल, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या करता है, एयर को सक करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है यूजिंग इम्पेलर. फिर वेलोसिटी बढ़ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्चार्ज कहाँ देते हैं, टू दी डिफ्यूजर. और डिफ्यूजर क्या करता है, उसकी वेलोसिटी कम करके उसका प्रेशर बढ़ाता है. वेलोसिटी कम करके क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. So this is the function of centrifugal compressor, and these centrifugal compressors are also the negative displacement compressor. Are also the negative displacement compressors. Then there is an final one, the axial flow compressor. As the name suggests, the delivery of this compressor would be axially. तो ये जो हमारा कंप्रेसर है, इसकी डिलीवरी कैसे है, एक्सियल डिलीवरी रहती है. और इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस रहते हैं कंप्रेशन के. सिर्फ एक स्टेज में कंप्रेशन नहीं होता है, देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन. देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन. सो दिस इज एन कंप्रेसर. ये कंप्रेसर की नंबर ऑफ स्टेजेस है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है. दिस आर नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन. नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज द मूविंग पार्ट, एंड दिस, उसके बाद एक स्टेडी पार्ट है. मूविंग पार्ट है, स्टेडी पार्ट है, मूविंग पार्ट है, स्टेडी. दीज आर मूविंग ब्लेड्स, दीज आर स्टेडी ब्लेड्स, मूविंग ब्लेड, स्टेडी ब्लेड्स, मूविंग ब्लेड, स्टेडी ब्लेड. ऐसे नंबर ऑफ ब्लेड्स की अरेंजमेंट है. ये अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, एज यू वुड हैव स्टडीड इन योर steam turbine, there are some one part of moving blade, one part of stationary blade, जिससे हम लोग इवेंचुअली प्रेशर ड्रॉप को स्टेज वाइज करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा इंक्रीज इन प्रेशर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेज वाइज इंक्रीज कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, स्टेज वाइज इंक्रीज कर रहे हैं. एंड दिस इंक्रीज इन axial flow compressor, the pressure increase is also occurring due to the diffuser part, due to the diffuser part, as like in the centrifugal compressor, as like in the centrifugal compressor. So what you need to understand regarding the rotary compressors are that vent type, screw type, and root blower are the positive displacement compressor, as like your reciprocating compressor. And centrifugal compression and axial flow compressors are the
negative displacement compressor, because it can come for 2 marks also to differentiate between the positive displacement and negative displacement compressor. The positive displacement and negative displacement compressor. So anybody have any questions regarding this rotary air compressor? Rotary air compressor? Do anybody have any questions? Any doubts you can ask me? If you have any doubt, you can ask me right now. Yes, Sanket. Vishal? Vishal, I think Vishal has raised hand. Vishal Fulzale, do you have any question? If you have, you can ask. Okay, Vishal, fine. Yes, Athang, do you have any questions? No, sir. Okay. So now what I am going to say that I will share an sheet with you all on your group. Thaukar sir will share the sheet related to the formulas that would be required us to solve the numericals on Breton cycle as well as your compressor. जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों को इसमें आते हैं गेट की एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो हमें इक्वेशन लगने वाले उसकी शीट में शेयर कर दूंगा। ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसकी भी शीट में शेयर कर दूंगा। लेकिन ब्रेटन साइकिल की थ्योरी अभी ये वाले टाइम में करना पॉसिबल नहीं है, एज वी हैज ओनली लेफ्ट विथ 10 to 13 minutes. It is not possible to complete the theory related to the Breton cycle. सो नेक्स्ट लेक्चर जब मुझे शेड्यूल में मिलेगा तो मैं पहले आधे घंटे में हम लोगों का ब्रेटन साइकिल की थ्योरी कर लूंगा। उसके बाद में उसके बाद में जो 1.5 घंटा हमारे पास बचेगा उसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सो डिड यू ऑल गेट दिस? Yes, sir. Okay, fine. Then thank you. You can leave the meeting now. We will meet next time. Thank you. Thank you for your patience listening. Yes, Ritika?